Hello everyone, my name is Ritesh Pandey. We are into class 3 of IUPAC nomenclature. Now before this, in class 1 and class 2, we got started with the basic rules of naming the organic compounds, and till class 2 we had completed maximum functional groups. Here's a very quick recap of what we did in class 1 and class 2. You need to see class 1 and class 2 before you go into this particular video, which is class 3. And here's a very quick recap of what we did in the previous two videos. Now it all began with some common names which are there in NCERT. Remember, I had called it NCERT based IUPAC nomenclature because the rules, the examples, even the common names were all copy pasted from NCERT. You will find this in class 1, the common names, and it's important in the current scenario. NCERT is the principal book. Everything which is in NCERT needs to be known. Parent chain, branches, functional group. So all of this was done in details in class 1, 7 carbon heptane, 8 carbon octane, 9 carbon nonane. In that real class, class 1, I had spoken about carbon 11, carbon 12, 13 carbon compound, 19 carbon तक मैंने बताया था, 20 के लिए आइकोसेन, 30 के लिए ट्राइकोंटेन. ये सब क्लास 1 में था. क्लास 1 में all this were explained in details. Abbreviated forms, methyl को ME, ethyl को ET. Exactly the same language, the same pictures of NCERT were explained. You will want to see class 1 and class 2. It began with rule 1, longest carbon chain, rule 2, lowest sum rule, then rule 3, which was about placing hyphens, no space or break, alphabetical order. ये सब कुछ class 1 में था. Multiple groups होने से prefix like di, tri, tetra, penta were used. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं होता है. ये सारा कुछ डिटेल में क्लास 1 में था. एंड इन द एंड दिस वाज अ वेरी पर्टिकुलर एग्जांपल, अ वेरी नाइस एग्जांपल. equal chain 10 carbon chain, this way that way you choose the longest chain with maximum number of side branches. It was a very nice example, and there was so much which we discussed in details in class 1 and class 2. आईसो को यूज करते ये रूल भी सिर्फ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. तो ये सारी बात क्लास 1 में हुई थी. क्लास 2 में वी बिगैन विथ साइक्लिक कंपाउंड्स. क्लास 2 में वी बिगैन विथ साइक्लिक कंपाउंड्स. सम इंफॉर्मेशन विच वाज देयर इन एनसीईआरटी, some information, these are pictures from NCERT, these are some pictures from NCERT, and there was a lot of discussion, chain, ring, number of carbon atoms. ये सब कुछ क्लास 2 में हुआ था. This was done in class 2, and I repeat, class 1, class 2 पहले देख लेना चाहिए before you go into this particular class. Some examples which were there from NCERT again. Priority of the functional groups. एक से ज़्यादा functional groups होने से जो priority होता है, और फिर सारे functional groups का डिटेल में डिस्कशन. We began with alcohols. This is the table which is there in NCERT. We began with alcohols. Alkanol, 1 propanol, propane 2-ol, diol, triol, propane 1 2 3 triol for glycerol. एक मजेदार बात, मैंने एक स्टोरी भी सुनाई थी, सनी देओल. aldehyde ketone, and this was a very long discussion. ये एनसीईआरटी में इस चैप्टर में नहीं है. These are in individual chapters. यहाँ पर हम लोग सारे फंक्शनल ग्रुप्स की बात एक ही क्लास में कर लेते हैं. तो नेचुरली we spoke about aldehyde and ketone, carbonyl, aldehyde, ketone, alkanal, alkanone. Then we spoke about acids, carboxylic acids, propanoic, butanoic. ये सब कुछ लास्ट क्लास में हो गया था. This was class 2. IUPAC nomenclature, and then common names. Oxalic, malonic, succinic, glutaric, adipic, pimelic. Oh my sweet good apple pie. Oxalic, malonic, succinic, glutaric, adipic, pimelic. Ohm's gap is also a popular mnemonic. क्लास 2 देखने की जरूरत है. डिटेल में एसिड डेरिवेटिव्स की बात हुई थी. ईस्टर्स आर कॉल्ड alkyl alkanoate, acid halides are called alkanoyl halide, anhydrides are called alkanoyl anhydride, and then we stopped at acid amide. This is where we want to begin with right now. acid amide पे मैंने एक ब्रेक लिया था बिकॉज acid amide और अमाइन का नोमेनक्लेचर बहुत सिमिलर होता है. तो बात करेंगे आज की क्लास में हम लोग अमाइन से. आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अमाइन से.
Now what are amines? First of all, amines are compounds having functional group NH2, तो इट्स रिप्रेजेंटेड एज RNH2 और इसका नॉमेनक्लेचर होता है एल्कानामाइन. एल्कानामाइन. नेचुरली एल्कानामाइन विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटॉम. तो अगर एक कार्बन है तो मीथानामाइन बोलेंगे. यू विल वांट टू कॉल इट मीथानामाइन. द फंक्शनल ग्रुप इज NH2. द फंक्शनल ग्रुप इज NH2. NH2 होने से द कंपाउंड इज कॉल्ड अमाइन. एक कार्बन होने से एल्कानामाइन विल बी मीथानामाइन. वन कार्बन इज मेथ. दो कार्बन होने से CH3 CH2 NH2 you will want to call it ethanamine. You will want to call it ethanamine. और जैसे अल्कोहल में था 3 कार्बन होने से, the moment you have 3 कार्बन it will be called propane 1 amine. You will want to call it propane 1 amine. यहां पर propane 1 लिखते हैं. यहां पे propane 1 लिखना जरूरी है. ये प्रोपेन का ई नहीं लगाएंगे बिकॉज 2 वोवेल साथ में नहीं आ सकता. प्रोपेन 1 अमाइन लिखेंगे बिकॉज 3 कार्बन का चेन में प्रोपेन 1 अमाइन के साथ में यू कैन ऑल्सो हैव प्रोपेन 2 अमाइन. यू नो देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी. आई टोल्ड यू एक कंपाउंड का 2 नाम हो पर 2 कंपाउंड का एक नाम नहीं हो सकता. तो यहां पर 1 अमाइन लिखना जरूरी है. सिर्फ प्रोपानामाइन नहीं लिख सकते बिकॉज प्रोपेन 1 अमाइन एंड दिस कुड बी प्रोपेन 2 अमाइन. 2 नंबर पर कार्बन 2 पर अगर NH2 लगा हुआ है यू विल वांट टू कॉल इट प्रोपेन 2 अमाइन. यू विल वांट टू कॉल इट प्रोपेन 2 अमाइन. एंड सिमिलरली it could be a long carbon chain. And if it's a carbon chain of this kind, यहां पर अगर NH2 लगा हुआ है you will want to number it. Left to right will give you a smaller number. 1 2 3 4 5 6 and you will call it hexane. E नहीं लिखेंगे, 2 वॉवल साथ में नहीं आता है. 3 नंबर पे NH2 लगा हुआ है. You will want to call it hexane 3 amine. Now so far they're all 1 degree amine. You know amines could be of 3 types. Depending upon the structure, amine 3 तरह के होते हैं. It could be a 1 degree amine which is also called a primary amine. 1 degree amine is also called a primary amine. Primary amine is one जहां पे एक कार्बन से NH2 लगा रहता है. Then there could be a 2 degree amine which is called a secondary amine. 2 degree or secondary amine will look like this. It will look like a RNH R prime. R prime सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है. इसको 2 डिग्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि नाइट्रोजन 2 एल्काइल ग्रुप से लगा रहता है या 2 कार्बन से लगा रहता है. एल्काइलो अराइलो नाइट्रोजन 2 कार्बन से लगा हुआ है. यू विल वांट टू कॉल इट 2 डिग्री अमाइन. देन देयर कुड बी a 3 डिग्री अमाइन. A 3 degree amine is naturally called a tertiary amine. A 3 degree amine is called a tertiary amine and it's called 3 degree because यहाँ पर nitrogen will be attached to 3 alkyl groups or 3 carbon atoms. R prime could be same or different. ये same या अलग अलग alkyl group होगा पर नाइट्रोजन 3 कार्बन से लगा हुआ है 3 डिग्री, 2 कार्बन से लगा हुआ है 2 डिग्री, 1 कार्बन से लगा है 1 डिग्री. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी. और अभी तक जो नेम हमने देखा है एल्कानामाइन वो 1 डिग्री का नाम है. द नेम एल्कानामाइन इज फॉर 1 डिग्री. द नेम एल्कानामाइन इज फॉर 1 डिग्री. नाउ व्हाट डू यू डू विद 2 डिग्री? 2 डिग्री के साथ में क्या करते हैं? 2 डिग्री के साथ में RNH R प्राइम. सपोज 2 डिग्री का सबसे सिंपल एग्जांपल क्या होगा? अगर दोनों एक कार्बन का चेन है CH3 NH CH3 और एक कार्बन का होगा, एक 2 कार्बन का होगा CH3 NH CH2 CH3. ये 2 सबसे कॉमन एग्जांपल है, सबसे सिंपल एग्जांपल है. 2 अल्काइल ग्रुप है जो सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, दोनों सेम है. यहां पर इथाइल है, इथाइल है. पुराना नाम, कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम कुड बी डाइमिथाइलमाइन, मिथाइल इथाइलमाइन या इथाइल मिथाइलमाइन. अभी क्या करते हैं? नाइट्रोजन को एक पोजीशन लेते हैं. यू टेक नाइट्रोजन एज अ पोजीशन, अ नंबर. यहां पे दोनों का चेन बराबर है, एक कार्बन का है. नाइट्रोजन को एक पोजीशन लेते हैं, इसके ऊपर में मिथाइल लगा हुआ है. यू विल वांट टू कॉल इट N मिथाइल मिथानामाइन.
एन मिथाइल मिथेनामाइन, एन मिथाइल मिथेनामाइन मतलब मिथेनामाइन जैसा एक कार्बन का अमाइन है जिसके ऊपर नाइट्रोजन पे मिथाइल लगा हुआ है। जब यहां मिथाइल और इथाइल है, जब यहां मिथाइल और इथाइल है, यू विल वांट टू सेलेक्ट द बिगर चेन। द बिगर चेन, यहां छोटा ये बड़ा है, 2 कार्बन का चेन है, दिस विल बिकम द मेन कंपाउंड, मतलब दिस विल बिकम इथेनामाइन। जैसे वो मिथेनामाइन था, दोनों एक ही था, ये इथेनामाइन होगा, ये इथेनामाइन होगा। जो बड़ा कार्बन चेन होगा उसके हिसाब से पेरेंट नेम होगा, यू विल वांट टू कॉल इट इथेनामाइन। और नाइट्रोजन पे मिथाइल लगा हुआ है तो यू विल कॉल इट एन मिथाइल इथेनामाइन, यू विल कॉल इट एन मिथाइल इथेनामाइन। लेट मी टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। 2 डिग्री का और एग्जांपल लेते हैं। नेचुरली देयर कुड बी अनदर एग्जांपल लाइक, देयर कुड बी अनदर एग्जांपल लाइक CH3 CH2 CH3 CH2 NH, and it could be CH2 CH2 CH3. It always helps if you are good at drawing the bond line form, if you are good at drawing the bond line form. यहाँ पे 2 कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे 3 कार्बन लगा हुआ है। नेचुरली जो बड़ा ग्रुप है 3 कार्बन का, दिस विल बिकम प्रोपानामाइन, दिस विल बिकम प्रोपानामाइन। यहाँ पे 3 कार्बन लगा है, 1 2 3, ये प्रोपानामाइन होगा। एन पे इथाइल लगा हुआ है, यू विल वांट टू कॉल इट नेचुरली कैपिटल एन, एन इथाइल, एन इथाइल। और इसको नंबर जैसे ट्रीट करते हैं क्योंकि नंबर और वर्ड के बीच में एक हाइफन लगाते हैं, एन इथाइल प्रोपानामाइन। और इसको प्रोपेन 1 अमाइन लिखना होगा, वापस इसको प्रोपेन 1 अमाइन लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये पहला पोजीशन पर है, ये पहला पोजीशन पर है। और यहां पर 1 लिखना जरूरी है क्योंकि इट माइट वेल बी अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, जहां पे ये 3 कार्बन का 1 2 3 है और 2 नंबर पे लगा हुआ है, ये मेन कंपाउंड है। नेचुरली ये मेन कंपाउंड है, प्रोपानामाइन है। एन पे इथाइल लगा हुआ है, यू विल वांट टू कॉल इट एन इथाइल, यू विल वांट टू कॉल इट एन इथाइल, बट एन इथाइल कार्बन चेन 3 प्रोपानामाइन, बट दिस विल बी प्रोपेन 2 अमाइन, दिस विल बी प्रोपेन 2 अमाइन, दिस विल बी प्रोपेन 2 अमाइन। सिमिलरली अगर एक 3 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन में क्या होगा, नाइट्रोजन में 3 कार्बन लगा रहेगा या 3 अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा। सो फॉर अ 3 डिग्री अमाइन, if suppose the simplest example is CH3N CH3 तीनों एक एक कार्बन का है, किसी को भी एक मेन कंपाउंड बना सकते हैं मिथेनामाइन, और N पे 2 मिथाइल है और N को नंबर जैसे लेते हैं इसीलिए N, N लिखते हैं। रिमेंबर 2 नंबर के बीच में कॉमा लगाते थे, N, N डाइमिथाइल, N, N डाइमिथाइल, N, N डाइमिथाइल मिथेनामाइन। What you can do at your end is, whenever I write a structure, एक तो पहले किताब पढ़ लेना चाहिए, एनसीईआरटी या कोई भी किताब पढ़ लेनी चाहिए। एनसीईआरटी में हालांकि ये चैप्टर्स के अंदर में है, चैप्टर 1 में नहीं है ये, पर एक दूसरी किताब या एनसीईआरटी का इंडिविजुअल चैप्टर से ये सारा इंफॉर्मेशन ले लेना चाहिए। उसके बाद वीडियो को पॉज करके खुद नाम लिखना चाहिए, या मैंने एक कंपाउंड का नाम अगर बता दिया, वंस यू लर्न दिस, बाकी खुद प्रैक्टिस करना चाहिए, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करना चाहिए। सपोज इफ इट इज CH3 CH2 N CH2 CH3 एंड अ मिथाइल, ये लेफ्ट में भी इथाइल, राइट में भी इथाइल, किसी से को भी हम लोग मेन कंपाउंड ले सकते हैं। सपोज इसको ले लिया इथेनामाइन, तो N पे इथाइल भी लगा है, N इथाइल N मिथाइल, दिस इज टेकन एज अ पोजीशन N इथाइल N मिथाइल। नेचुरली यहां पर N इथाइल N मिथाइल ऐसे लिखने का कारण है, E comes before M, E comes before N, E comes before M, alphabetical order, N इथाइल N मिथाइल इथेनामाइन, N मिथाइल N इथाइल N मिथाइल इथेनामाइन। Now we can work with a few more examples. Suppose ये 3 कार्बन का चेन है, एक 3 कार्बन का चेन है, यहां पर मिथाइल लगा हुआ है, यहां पर भी मिथाइल लगा हुआ है, ये प्रोपानामाइन होगा, 2 मिथाइल लगा हुआ है, N को पोजीशन जैसा लेंगे, नेचुरली दिस विल बी टेकन एज द मेन कंपाउंड, ये प्रोपानामाइन हो जाएगा। इट विल बी N, N डाइमिथाइल, इट विल बी N, N डाइमिथाइल, प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन, N, N डाइमिथाइल, प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। Let me quickly take another example. It could be a compound like
सपोज यहाँ पे 4 कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है विच इज रिटन एज Me, यहाँ पर इथाइल लगा हुआ है विच इज रिटन एज Et. सो नेचुरली ये मेन चेन है, इट विल बी ब्यूटेनमाइन, इट विल बी ब्यूटेनमाइन, और इसको हम लोग नंबरिंग करेंगे बिकॉज 2 नंबर पे लगा हुआ है. आई विल कॉल इट ब्यूटेन 2 अमाइन. ब्यूटेन 2 अमाइन would be the parent name. Butane 2 amine would be the parent name, and I'll take N as a position. N-methyl name will be N-methyl. Sorry, methyl के पहले ethyl आएगा because E comes before M. N-ethyl, N-methyl, N-ethyl, N-methyl, N-ethyl, N-methyl. Butane 2 amine will be the complete name of a 3-degree amine. सो बेसिकली जो सबसे बड़ा चेन होता है उसको पेरेंट कंपाउंड बना देते हैं विच इज ब्यूटेन 2 अमाइन. वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज, अगर ये हाइड्रोजन होता, हैड इट बीन हाइड्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन होता तो नेचुरली इस कंपाउंड का नाम होता ब्यूटेन 2 अमाइन. ब्यूटेन 2 अमाइन, दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ब्यूटेन 2 अमाइन. सो दिस इज ब्यूटेन 2 अमाइन जिसमें नाइट्रोजन पर इथाइल और मिथाइल लगा हुआ है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एन इथाइल एन मिथाइल. एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं एसिड अमाइन में, एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं एसिड अमाइन में. एसिड अमाइन में विच इज द एसिड डेरिवेटिव वी डिड नॉट डू इन द लास्ट क्लास. एसिड अमाइन का एक और नाम अमाइड भी होता है. नेचुरली द फंक्शनल ग्रुप इज CONH2, द फंक्शनल ग्रुप इज CONH2, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, and the common name is alkanamide. The common name is alkanamide. जैसे इसके पहले alkanamine था, this called alkanamide. पर ये alkanamide कब होगा? ये alkanamide तब होगा जब ये normal RCONH2 है. So you will want to call it, 2 कार्बन है, you will want to call it ethanamide. You will want to call it ethanamide. You will want to call it ethanamide. The moment it's a little complicated, CH3CO NH CH3, अब ये 2 डिग्री जैसा अमाइन जैसा ही नेम होगा. विल बिलीव ये इथेनामाइड है विथ मिथाइल और नाइट्रोजन, विथ मिथाइल और नाइट्रोजन. सो विल वांट टू कॉल इट एन मिथाइल इथेनामाइड. यू विल वांट टू कॉल इट एन मिथाइल इथेनामाइड. यू विल वांट टू कॉल इट एन मिथाइल इथेनामाइड. सपोज इफ इट्स CH3 CH2 CO, CH3 CH3 CO, N CH3 CH3, ये 3 डिग्री अमाइन जैसा नेम होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज प्रोपानामाइड, दिस इज प्रोपानामाइड. 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है. नाइट्रोजन इज टेकन एज अ नंबर, N, N, जैसे 2 नंबर के बीच में कॉमा लगाते हैं, N, N डाइमिथाइल, N, N डाइमिथाइल प्रोपानामाइड, N, N डाइमिथाइल प्रोपानामाइड. यहां पर 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू नो दिस इज अ टर्मिनल ग्रुप. कोई भी एसिड या एसिड डेरिवेटिव टर्मिनल ग्रुप है तो यहाँ पे नंबर नहीं देना है. 3 कार्बन का अमाइड है, प्रोपानामाइड. नाम प्रोपानामाइड क्यों है? नाम प्रोपानामाइड है बिकॉज अगर यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं होता, अगर यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं होता, CH3 CH2 CONH2, दिस कंपाउंड वुड हैव बीन कॉल्ड प्रोपानामाइड. ये प्रोपानामाइड है, ये प्रोपानामाइड है, तो ये प्रोपानामाइड है. इस प्रोपानामाइड पर नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल है. You will want to call it N, N dimethyl propanamide. So this is how amine and amide have a very similar way of nomenclature. एक functional group which is again a kind of acid derivative, a terminal functional group is a cyanide. Now cyanide in IUPAC nomenclature is called a nitrile. It's called a nitrile. Cyano group is known और C ट्रिपल बॉन्ड एन, ये साइनो ग्रुप है. IUPAC नोमेनक्लेचर में साइनाइड्स आर कॉल्ड नाइट्राइल्स. कॉमन नेम इज साइनाइड, IUPAC नेम इज नाइट्राइल. और एक बेसिक फैक्ट क्या है, जब साइनाइड बोलते हैं, सपोज इफ आई कॉल इट मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड. नाउ व्हेन आई कॉल इट साइनाइड, लिसन केयरफुली, जब इसको साइनाइड बोलते हैं तो साइनाइड में कार्बन ले लेते हैं. अब साइनाइड में एक कार्बन ले लेते हैं तो इसको मिथाइल ही बोलते हैं, इसको मिथाइल. एक कार्बन ही बचता है, एक कार्बन ही बचता है, मिथाइल साइनाइड बोलते हैं. ये कॉमन नेम है. IUPAC नेम नाइट्राइल है, और जब नाइट्राइल लेंगे साइनाइड में तो साइनाइड में कार्बन आ गया तो ये कार्बन छोड़ के मिथाइल साइनाइड बोलते हैं. पर जब नाइट्राइल बोलते हैं तो दोनों कार्बन ऐड करेंगे. नाइट्राइल जब बोलेंगे विल टेक बोथ द कार्बन एटॉम्स एंड मिथाइल साइनाइड
विल बी कॉल्ड इथेन नाइट्राइल। आई होप इस एग्जाम्पल से ये फैक्ट समझ में आ गया होगा कि मिथाइल साइनाइड में ये कार्बन ले लेते हैं तो इस कार्बन को एक्सक्लूड करके एक कार्बन के लिए मिथाइल साइनाइड लिखते हैं, पर जब नाइट्राइल लिखते हैं तो सारा कार्बन लेते हैं, तो 2 कार्बन हो गया इथेन नाइट्राइल। नेचुरली अगर द कंपाउंड इज CF3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, 3 कार्बन है, द नॉमेनक्लेचर IUPAC nomenclature will be propane nitrile. The nomenclature will be propane nitrile because there are 3 carbon atoms. Propane nitrile because there are 3 carbon atoms. कॉमन नेम में साइनाइड को लेकर के इथाइल ही बचता है, कॉमन नेम विल बी इथाइल साइनाइड। कॉमन नेम विल बी इथाइल साइनाइड। कॉमन नेम विल बी इथाइल साइनाइड बिकॉज साइनाइड में साइनाइड आ जाता है, ये कॉमन नेम है। IUPAC नेम नाइट्राइल है, तीनों कार्बन लेंगे, यू विल कॉल इट प्रोपेन नाइट्राइल। मूविंग ऑन, अगर एक से ज्यादा CN है, अगर एक से ज्यादा CN है, सपोज इसका कॉमन नेम है साइनोजेन, इसका कॉमन नेम है साइनोजेन, वैसे ही नाम करेंगे जैसे 1,2 डायोल 1,2 डायाल करते थे। दिस विल बी कॉल्ड इथेन 1,2, इथेन 1,2 डाइनाइट्राइल। इट विल बी कॉल्ड इथेन 1,2 डाइनाइट्राइल। Similarly, if it's a compound like C triple bond N, total 3 कार्बन है, you will want to call it propane 1,3 डाइनाइट्राइल। ये 1,2 1,3 जो लिखते हैं ये भी एसिड जैसा कन्वेंशनल है, पता ये एंड पे ही रहेगा, 1 और 3 रहेगा, पर ये कन्वेंशन है। You will want to call it ethane 1,2 dinitrile, propane 1,3 trinitrile, dinitrile 2 CN रहेगा। कोई भी फंक्शनल ग्रुप 2 ही रह सकता है बिकॉज दे आर टर्मिनल। अगर टर्मिनल है तो एक चेन का 2 ही एंड होता है, एक चेन का 2 ही एंड होता है। अगर 2 से ज्यादा CN होता है, अगर 2 से ज्यादा CN होता है, इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल, काफी एग्जाम में काफी बार पूछ चुका है। Suppose you have a compound like CH2 जहां पर तीनों जगह पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, तीनों जगह पे C ट्रिपल बॉन्ड N है। नेचुरली अगर बीच में C ट्रिपल बॉन्ड N लगाएंगे तो एक हाइड्रोजन यहां पर कम करना पड़ेगा। अगर ऐसे कंपाउंड, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, इसका 2 नाम, इसके 2 नाम की बात करेंगे। जो इसका पुराना नाम था वहां पर नेचुरली टर्मिनल ग्रुप 2 ही हो सकता है, टर्मिनल ग्रुप 2 ही हो सकता है। तो टर्मिनल ग्रुप अगर 2 ही हो सकता है तो ये पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल होता, जहां पे 3 नंबर पर एक साइनो का ग्रुप था। सो दिस इज द ओल्ड नेम, 3 साइनो पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल, पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल, दिस वाज द ओल्ड नेम, 3 साइनो पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल। Naturally terminal group which is at the end of the chain, terminal group जो चेन के एंड में होता है, एक चेन का 2 ही एंड हो सकता है। सो 1 और 5 इसको फंक्शनल ग्रुप बना दिया, डाइनाइट्राइल बना दिया, इसको एक ब्रांचिंग बना दिया, 3 साइनो पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल। ये 90s में क्वेश्चन आता था तो इसका आंसर ये होता था। ये पुराना नाम है 3 साइनो पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पीपल थॉट कि 2 साइनो को फंक्शनल ग्रुप बनाना, एक साइनो को ब्रांचिंग ले लेना, ये एक तरह से अनफेयर है। ये मैं जैसे बता रहा हूं वैसे याद रखने से ही सुविधा होगा। अगर 2 से ज्यादा टर्मिनल ग्रुप है, अगर 2 से ज्यादा टर्मिनल ग्रुप है, ये जो पुराना नाम है, जहां 2 को फंक्शनल ग्रुप बना दिया, एक को ब्रांचिंग बना दिया, इसके साथ में एक तरह की नाइंसाफी है। इट्स अनफेयर टू दिस साइनो। 3 नंबर पर इसको साइनो बना दिया, ग्रुप बना दिया, सब्स्टिट्यूएंट बना दिया, और 1,5 को फंक्शनल ग्रुप बना दिया। सो पीपल थॉट इट्स बीइंग अ लिटिल अनफेयर विद दिस साइनो। ये अनफेयर है, ये नाइंसाफी है। या तो तीनों को फंक्शनल ग्रुप बनाओ, तीनों को फंक्शनल ग्रुप बना नहीं सकते बिकॉज टर्मिनल ग्रुप 2 ही होगा, तीनों को सब्स्टिट्यूएंट बना दो। ऐसे याद रखने में सुविधा हो गई। जो नया नाम इसका होगा, जो नया नाम इस कंपाउंड का होगा, अगर तीनों को फंक्शनल ग्रुप नहीं ले सकते तो इसके साथ में ये नाइंसाफी नहीं चलेगा, इसको ब्रांचिंग लेना सही नहीं है। अगर तीनों को फंक्शनल ग्रुप नहीं बना सकते
तो तीनों को सब्स्टिट्यूएंट बना दो, तीनों को ब्रांचिंग बना दो। सो द न्यू नेम इज, व्हेन यू कंसिडर ऑल द थ्री एज ब्रांचिंग, तीनों को ब्रांचिंग बनाते हैं एंड ऐसे 1 2 3 नंबर करते हैं, तीनों को ब्रांचिंग बना देते हैं। यू कॉल इट प्रोपेन, यू कॉल इट प्रोपेन, यू कॉल इट प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ये इसका नया नाम है। अब कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं बिकॉज नाइट्राइल में तो खाली नाइट्रोजन रहता है। कार्बोनाइट्राइल इज CN, कार्बोनाइट्राइल इज CN, ये इसका नया नॉमेनक्लेचर है। और ये रूल बन जाता है कि अगर दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल हो, दो से ज्यादा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो जहां पे सबको फंक्शनल ग्रुप नहीं बना सकते बिकॉज एक चेन का दो ही एंड होगा, तो किसी को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनाएंगे। अगर सबको फंक्शनल ग्रुप नहीं बना सकते हैं तो सबको सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे। ऑल द थ्री विल बी सब्स्टिट्यूएंट, इट विल बी ए 3 कार्बन चेन, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ये इसका नया नाम है। अभी एंट्रेंस एग्जाम्स में या इवन बोर्ड एग्जाम्स में दिस विल बी द राइट आंसर एंड वी कैन डू इट विथ मोर केसेस। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं जहां पे सपोज CN की जगह आई टेक COOH, बिकॉज सबसे पॉपुलर टर्मिनल ग्रुप तो COOH ही होगा। COOH यहां पर भी है, COOH यहां पर भी है, COOH यहां पर भी है। पुराना नाम क्या है? पुराना नाम वापस क्या है? जहां पर 1 और 5 को फंक्शनल बना लेते थे, 3 नंबर पे इसको सब्स्टिट्यूएंट बना देते थे। दिस इज द ओल्ड नेम। 3 कार्बोक्सिल पेंटेन 1,5 डिओइक एसिड, पेंटेन 1,5 डिओइक एसिड। नेचुरली एक चेन का दो ही एंड हो सकता है और ये दो टर्मिनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप बना दिया, इसको सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। पेंटेन 1,5 डिओइक एसिड 1 and 5 they are taken as the functional groups, 3 नंबर पर COH को सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। यू कॉलिंग इट 3 कार्बोक्सिल पेंटेन 1,5 डिओइक एसिड। ये वैसा ही है जैसे पुराना नेम में इन दोनों साइनाइड को डाइनाइट्राइल बना दिया था, इसको साइनो बना दिया था। नाउ नेचुरली द न्यू नेम इज और द न्यू रूल इज, तीनों को फंक्शनल ग्रुप नहीं बना सकते तो तीनों को सब्स्टिट्यूएंट बना दो। कॉल इट प्रोपेन 1, 2, 3। सब कुछ कॉपी करने की जरूरत है और जो अप्रोच मैं बता रहा हूं इससे याद रखने में सुविधा होगी। अगर तीनों को फंक्शनल ग्रुप नहीं ले सकते बिकॉज फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल होने से दो ही पॉसिबल है, तीनों को सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे एंड विल वांट टू नेम इट प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सपोज if the same happens with aldehyde, another popular terminal group is aldehyde, bond line form बनाता हूं। यहां पर एक CHO है, यहां पर एक CHO है, यहां पर एक CHO है। नेचुरली पूर्ण नाम क्या होता? 1, 2, 3, 4, 5, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप, ये ब्रांचिंग। तो 2 नंबर पर इसको बोल देते 2 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डायाल, ये पुराना नाम है जो पहले चलता था। 1 और 5 पे इसको फंक्शनल ग्रुप बना दिए, 2 नंबर पर इसको सब्स्टिट्यूएंट बना दिए। अभी नियम क्या है? अगर टर्मिनल ग्रुप है दो ही रह सकता है, सबको हम लोग फंक्शनल ग्रुप नहीं बना सकते हैं। अभी नियम क्या है? अभी नियम है कि अगर सबको फंक्शनल ग्रुप नहीं बना सकते, सबको सब्स्टिट्यूएंट बना दो। सो नाउ आई वांट टू टेक दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सो द कार्बन चेन विल लुक लाइक 1, 2, 3, जहां पे कार्बन 1 पर 2 है, कार्बन 3 पर एक CHO है एंड द न्यू IUPAC नेम विल बी 1, 1, फिर ये 3 हो जाएगा। सो नेचुरली आई वांट टू कॉल इट प्रोपेन 1, 1, 3 ट्राइकार्बल्डिहाइड। CHO को यहां पर कार्बल्डिहाइड बोलते हैं, एसिड को यहां पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। थोड़ा ये याद रखने की जरूरत है और ये याद नाम तभी रह पाएगा अगर तीनों को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बना दें एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली 3 कार्बन इन द पेरेंट चेन। तीनों को सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। ये वैसे ही है जैसे प्रोपेन 1, 2, 3
ट्राइब्रोमोप्रोपेन होता, ट्राइब्रोमोप्रोपेन होता। वैसे ये प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड है, तीनों का सब्स्टिट्यूएंट बना दिया है। विल वांट टू मूव ऑन। एक फंक्शनल ग्रुप जो लास्ट क्लास में थोड़ा छूट गया था, इट्स ईथर। ईथर इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। ईथर आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ईथर का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ROR प्राइम। आइडेंटिटी है एक ऑक्सीजन दो अल्काइल ग्रुप के बीच में। R और R प्राइम सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। अगर सेम होता है तो इसको सिंपल ईथर बोलते हैं, सिंपल ईथर। ये सिंपल ईथर है, ये भी एक सिंपल ईथर है। दोनों तरफ इथाइल है, दोनों तरफ मिथाइल है। पुराना नाम था डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल, डाईइथाइल। दोनों जब सेम है यू विल वांट टू कॉल इट अ सिंपल ईथर। और अगर दोनों अलग अलग है, यू विल वांट टू कॉल इट अ कॉम्प्लेक्स ईथर। कॉम्प्लेक्स ईथर में नेचुरली हो सकता है एक मिथाइल हो, एक मिथाइल हो, एक इथाइल हो, एक इथाइल हो, एक प्रोपाइल हो। CS2, CS2, CS3. What is the nomenclature? The nomenclature is they are called alkoxyalkane. The nomenclature is they are called alkoxyalkane. The rule is alkoxy will stand for the bigger, जो बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा, जिसमें ज्यादा कार्बन होगा, उसको एल्कोक्सी लिखेंगे। द नेमिंग विल बी एल्कोक्सीएल्केन। अब सिंपल में दोनों एक एक है, दो दो है, तो सिंपल में तो इसको मिथॉक्सीमीथेन ही बोलेंगे, दोनों में बराबर कार्बन है। सिंपल में R प्राइम सेम है, ये हो जाएगा मिथॉक्सीमीथेन, ये हो जाएगा इथॉक्सी ईथेन। बट व्हेन इट्स अ कॉम्प्लेक्स ईथर, alkoxy is for the bigger alkyl group. So naturally यहां पर एक कार्बन, दो कार्बन, this is the bigger alkyl group, it will be ethoxymethane. दो कार्बन के लिए you will want to call it ethoxymethane. यहां पर दो कार्बन, यहां पर तीन कार्बन, you will want to call it alkoxyalkane. Alkoxy is the smaller alkyl group. Alkoxy is the smaller alkyl group because the bigger alkyl group will be the parent compound. So this is the smaller alkyl group. ये smaller है। Alkoxyalkane में alkoxy will be the smaller alkyl group. This will be the smaller alkyl group because this will be the main compound. तो यहाँ पे smaller हो जाएगा। जब बराबर है, सिंपल में दोनों सेम है, मिथॉक्सीमीथेन, इथॉक्सीथेन। यहाँ पर ये इट्स अ बिगर कंपाउंड। जो छोटा है वो देखते हैं, यहाँ पर जो छोटा है वो देखते हैं। एंड इथॉक्सीमीथेन नहीं बोलेंगे, इसको मिथॉक्सीथेन बोलेंगे। विल कॉल इट मिथॉक्सीथेन। The smaller one will be chosen. Alkoxy will be the smaller alkyl group. This is the smaller alkyl group. You will call it methoxyethane. इसको बोलेंगे methoxyethane. यहाँ पर ये छोटा है, इसको बोलेंगे ethoxypropane. Alkoxy is the smaller alkyl group. The main compound is propane. Alkoxy is the substituent. तो छोटे वाले को लिखते हैं alkoxy, इथॉक्सी प्रोपेन। और यहां पर इसको इथॉक्सी 1 प्रोपेन लिखेंगे। क्यों इथॉक्सी 1 प्रोपेन लिखेंगे? बिकॉज ये बॉन्ड लाइन फॉर्म देखते हैं, ये इसका बॉन्ड लाइन फॉर्म है। दिस इज इथॉक्सी प्रोपेन। दिस माइट वेरी वेल बी अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ऐसा भी हो सकता है जहां पर ये 2 और 3 है, ये भी 2 और 3 है, और ये 2 और 3 में ये सेकेंड नंबर कार्बन पर इथॉक्सी लगा हुआ है, ये 1 नंबर कार्बन पर इथॉक्सी लगा हुआ है। सो नेचुरली इसका नाम 1 इथॉक्सी प्रोपेन होगा। इथॉक्सी 1 प्रोपेन की जगह इट 1 इथॉक्सी प्रोपेन। It will be 1 ethoxypropane and this will be 2 ethoxypropane. ये 2 ethoxypropane वैसा ही है जैसे 2 इथाइल प्रोपेन हो सकता है या 2 ब्रोमोप्रोपेन हो सकता है। तो बेसिकली इथॉक्सी इज टेकन एज अ सब्स्टिट्यूएंट। 1 ethoxypropane, 2 ethoxypropane. The rule is alkoxy will be the smaller alkyl group. I'll give you a bigger example.
it's a bigger chain. You'll want to number it 1 2 3 4 5. ये छोटा है, यहाँ पर 3 कार्बन है, so naturally this is propoxy. ये मेन कंपाउंड होगा. You'll want to call it 3-propoxy. You'll want to call it 3-propoxy pentane. Alkoxy will be the smaller alkyl group. This will be the mother chain. जो mother chain होगा वो बड़ा chain होगा. Alkoxy छोटा वाला होगा. This will be 3-propoxy pentane. This will be 3-propoxy pentane. 3 लिखना जरूरी है. सिर्फ propoxy pentane से काम नहीं होगा, because there could be a 5 carbon chain जहाँ पे 2 नंबर पर ऐसा propoxy लगा हुआ हो. So this will be 2-propoxy. This will be 2-propoxy. This 3-propoxy. This 2-propoxy. Alkoxy is the smaller name. 3-propoxy propane is the IUPAC name of this compound. Now with this, we have completed ester, halide, amine, amides. Nitro will always be a prefix, and we have talked about most of the functional groups. Write the IUPAC name of the compound from the given structure. ये NCERT के क्वेश्चन है. 8 कार्बन का चेन है, 8 कार्बन का चेन है. OH is the principal functional group, so naturally the mother name will be octane 3-ol. Remember यहाँ पर E नहीं रहेगा, it will be octane 3-ol. मिथाइल 6 नंबर पर है, so it will be 6-methyl octane 3-ol. 6-methyl octane 3-ol, simple as it looks. The next one is, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, 2 कीटोन है. It will be a dion. The numbering is done all right. लेफ्ट से राइट में 2 और 4 आता है, यहाँ से 3 और 5 आता, तो ये स्मॉलर रूल है. 6 कार्बन, so you'll want to call it hexane. You'll want to call it hexane 2,4, hexane 2,4 dion, hexane 2,4 dion. These are real NCERT questions. 5 नंबर पर C डबल बॉन्ड O है, एंड COOH is the principal functional group. ये प्रायोरिटी में हमने देखा था, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, सो दिस विल बिकम अ सब्स्टिट्यूएंट. 5 नंबर पर यू विल वांट टू कॉल इट 5-oxo. 6 कार्बन है, सो यू विल कॉल इट 5-oxohexanoic acid. द नेम विल बी 5-oxohexanoic acid. 5-oxohexanoic acid. We'll move on. You have triple bond, double bond, double bond. Naturally, when you number it from right to left, double bond is given a smaller position. This will be 135. 6 कार्बन का कंपाउंड है, so you'll want it like hexa 1,3 diene. Remember I could write A here because यहाँ पर D आ गया, 2 वॉवल नहीं है. hexa 1,3 diene 5-ine, because E comes before Y. पहले इन लिखेंगे फिर आइन लिखेंगे. hexa 1,3 diene 5-ine. We move on. Write the structure of the following compound. 2-chlorohexane. Now 2-chlorohexane would look like 1 2 3 4 5 6. 6 कार्बन का चेन है, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है. पेंट 4-ene-2-ol. यहाँ पर देखो पेंटा नहीं है, यहाँ पर पेंटा नहीं है बिकॉज 2 सामने आ जाता, 2 वोवल साथ में आ जाता. एनीवेज 5 कार्बन का चेन है, पेंट 2-ol मतलब 5 कार्बन का चेन में. OH यहाँ पर है. दिस द फंक्शनल ग्रुप. 4-ene means we'll want to count from this end. 1 2 3 4. A double bond here will make it pent 4-ene-2-ol. 3-nitrocyclohexene. सबसे पहले साइक्लोहेक्सीन बनाएंगे. साइक्लोहेक्सीन ऐसा होगा, और ये हमेशा इंपॉर्टेंट है कि पाई बॉन्ड का दोनों कार्बन को 1 और 2 लें. पाई बॉन्ड का दोनों कार्बन को 1 और 2 लें. इफ दिस इज 1, दिस इज 2, दिस विल बी पोजीशन 3. दिस विल बी 3-nitrocyclohexene. 4 is cyclohex 2-ene-1-ol. So naturally ये 6 कार्बन का cyclohex होगा. OH will be position 1. If this is position 1, 2-ene. This is position 2. This will be cyclohex 2-ene-1-ol 6-hydroxyheptanal. Naturally 6-hydroxyheptanal में भी you realize heptanal is the principal functional group. 6 कार्बन का चेन होगा, 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6, and you will want to number it from that end. Very important, it's always numbered from this end. 1 2 3 4 5 6. 6 हाइड्रोक्सी मतलब OH यहाँ पर होगा. ये 1 हाइड्रोक्सी नहीं है, ये 6 हाइड्रोक्सी है, because terminal group is always counted from that end. So you know we could write these names
we could write these structures with a lot of ease, comfort if the rules are known to us. 6 हाइड्रोक्सी ये ब्रांचिंग है, हेप्टेनॉल CHO है, ये फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल है, काउंटिंग यहाँ से चालू होगी. Now these are some more rules which are related to benzene derivatives. Some rules which are related to benzene derivatives along with the questions which are there at the end of NCERT. Now these are cases which we'll want to save for the last video in this series. We'll want to take a break for the time being. In the next session, in the next video of this series, this is class 3. In class 4, I'll talk about nomenclature of aromatic compounds, which is like compounds having benzene ring. All of this will be covered in the next class. See, all these are pictures from the NCERT. We'll cover this. I'll add more examples here and we'll want to complete the questions which are there in NCERT. So this much for the time being in this video. Thank you so much.